Good morning and welcome to everyone today's induction program. Myself Orpita Ghosh, I am host for today's program and Dr. Suresh Kumar sir is a co-host for today's program. Now without further ado, we will turn the time over to our Joya Mukherjee madam. Madam, over to you, madam. Okay. A very good morning to all of you. As we all know, today's session we are having on communication skill. Okay, and communication skill we will have a today's session. And I'm just waiting for a few more minutes to join the participants. After that, I will start the session. I think I should start the session with you people. Orpita madam, please make me co-host so that I can share my slide with you, students. Here, host. Orpita ma'am? Yes, madam. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Can you see the screen, students? Yes, ma'am. Okay. So I'm starting the session with you people today in communication skill and its importance in professional career.
This is my brief introduction, as already I've taken many sessions with you people. Hope this will be quite informative to you. So, yeah, Janardhan Dhivar, you have raised your hand. May I know the query? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, may I ask one thing today? Why you choose me for co-host, ma'am? Why co-host? Means? Co-host, ma'am. May I speak in Hindi, ma'am, please? Okay, you can. मैम बोल रहा हूँ कि आज मुझे कोस्ट क्यों चुना गया है? को-होस्ट आपको बना देगी, मैम बनाई है ऐसी. Nothing is the problem, okay, जनार्दन? ओके. वो क्लिक हो गया होगा मैम का इसमें. ठीक है. चलो, can I start the session? Yes, ma'am. Okay, communication skill. Being an engineering student, why you people are thinking that you are being provided communication skill? Why it's needed? क्या समझते हो? Communication skills का मतलब क्या होता है? पहले ये क्लियर करना जो टॉपिक है. What is the funda behind this communication skill? What is a communication skill? क्या समझते हो? What do you mean? To talk to someone or convey our idea, what we want to represent to someone. Okay. Next. To talk something, anyone, to share our feeling and someone share other feeling. That's why communication skill is important. Okay, very good. Next. See, if anyone is being hesitating to speak in English, they might try in Hindi. Communication skill is really required to interact with each other and share our ideas, which is really important in certain interviews. Yeah. Next. Ma'am, it is important because we need to express our thoughts so that the other person can know about our personality, and vice versa, we can know about the other person also. Okay, very good. Next. What makes the human beings different from the animals? Because humans have a brain, but the other animals have brain. Other animals also have brain, but they do not think. They have not a thinking power, but humans have a thinking power. And we know that our world is getting progress, our technology getting progress, because human is different from other things. Yeah. Excuse, ma'am, humans have gift of voice that animals don't have. Yeah. We can express our thought. Yeah, very good. We can express our thought. In communication skills, means we are having the abilities that we can give, we can receive some different kinds of information. Is it? That means what? We are communicating some new ideas. We are sharing our feelings with someone. We are, हम कोई चीज देखते हैं. When we observe, क्या करते हैं हम लोग? Speak करते हैं. When we are in pain, we express our feeling. ये क्या है? Means of communication. Some people are not able, they are not having voice. So क्या बोलते हैं? Deaf बोलते हैं कि dumb बोलते हैं? जो लोग बोल नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? Deaf or dumb? Dumb. Yeah. So how they express? वो लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को? By motion. Sign language. Through sign language. Sign language expression means this is the way how they are being communicating. सही है कि नहीं? And they're communicating with the help of the sign languages. They're communicating with the means of expressions. And who people जो they don't able to hear, they are just deaf. वो लोग क्या करते हैं? Sometimes we used to say ना, not getting your voice. बोर्ड उसको सुनाई नहीं दे रहा. How we express? मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रहा है.
Visual. Visual means sign language visually, ये हमारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन. तो फंडामेंटल क्या है कम्युनिकेशन स्किल का, हम लोग को समझ पाएंगे व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल. अब इसका इंपॉर्टेंस प्रोफेशनल लाइफ में, इसका हमारा इंपॉर्टेंस क्या है. देखो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, देखो यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वेज. कोई साइन लैंग्वेज में बोल रहा है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग वी आर इन अ क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन, हम लोग इशारा करते 1 नंबर क्वेश्चन, बस वी डोंट नो 1 नंबर, मैं आपको बाद में बताऊंगा. एंड व्हेन द टीचर टर्न्स क्या होता है, we express by our eyes. These are the different various things how we express. ये हमारे डे टू डे लाइफ का हम लोग एग्जाम्पल है कि नहीं है. इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम. यस मैम. जैसे गाड़ी से जाते हैं तो दाहिना साइड लेना है तो दाहिना हाथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पता. So anyone can read this one, this definition of communication skill for me? For me, anyone can read? Yeah, please. The ability to convey information to another effectively and efficiently. Business managers with global, good verbal, non-verbal, and written communication skills help facilitate the sharing of information between people within a company for its commercial benefit. Now, effectively, we know the ability to convey information to another effectively. We know how effective our communication power. Have you seen this salesman? कभी-कभी salesman के साथ पाला पड़ा आप लोगों को? Yes, ma'am. How they used to convey you people effectively. वो आपको अपना बातों से अपने ट्रैक में लेना चाहिए. अपना कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे, भैया ये ले लो, दिस वन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दिस विल बेनिफिट यू, दिस विल बी वेरी यूजफुल. एक बार लेना तो आप बार बार उसको लोगे. देखो कॉस्ट इफेक्टिव है, आई एम गिविंग यू दिस थिंग इन अ वेरी चीप रेट. वो इतना आपका ब्रेन वॉश करेंगे, दे विल ब्रेन वॉश यू दैट मच दैट लेने का मन भी नहीं है तो ठीक है चलो कम में तो दे रहा है, ओके ओके ठीक है ले ही लेते हैं. दैट इज द थिंग. Now, efficiently. Efficient क्या होता है? Effectively, we all are familiar with this word effective. अभी efficiently का मतलब क्या होता है? Anyone knows what are the efficient? अगर हम बोलते हैं efficient, this is one kind of skill. Efficiency is a skill. ये word जो है उसका root word है efficient. अब यहाँ पे efficiently. तो efficient क्या होता है? परफेक्ट बात. Perfect means accurate. ठीक है ना, यही होगा ना? यस मैम. तो कोई भी काम को परफेक्टली करना, ये भी क्या है, एक तरह का स्किल. मीन्स आई एम गिविंग यू सम टास्क, यू हैव टू कंप्लीट. कंप्लीट तो सब कोई कर देगा, बट द रेट ऑफ देयर एक्यूरेसी इज ग्रेट. क्यों? सब कोई वो काम कर सकता है, लेकिन out of here, Disha is the person who can do this work effectively and efficiently. Efficiently मैंने उसके साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि accuracy के साथ करेंगे. More accurately, she will do her work. Clear? Now, business managers with good verbal and non-verbal and written communication skill help facilitate the sharing of information between people within a company for its commercial benefit. If you're very good at skill, but anyhow you are not good in communication skill, you cannot convey your customers, you cannot convey your group managers, unless and until first thing is that you will not get a job. Next one, if you get a job, your promotion will be not there. Because when you try to express, you hesitate. That is a barrier in a communication, that you are hesitating yourself. Now, next part I am coming. Effective communication skills. What are the best effective communication skills? क्या होता है? Effective communication skills में क्या हमारा सबसे important factor क्या है? Effective listening. Effective listening, utilizing feedback, regulating information flow, two-way communication,
use of simple languages, avoid information overloaded, reduce physical barriers or psychological barriers, you can say. There are many क्या बोलते हैं, physical barriers है. कभी कभी क्या होता है, when we are traveling on the bus, train, कोई हमको फोन करता है. Simple is the calling is that. तो कॉल किया, हाँ हेलो हेलो, who is here? हाँ क्या, रिपीट. ये नॉर्मल है हमारा. होता है कि नहीं है? ऐसा सिचुएशन कभी आया है कि नहीं आया आप लोग की लाइफ? Yes, ma'am. Yes, It is a psychological barrier, you can say physical. Now, create an environment of trust and confidence. Trust and confidence के साथ हमारा जो environment build up होगा वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना. मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग का इंक्लूड करने का मतलब है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कोई चीज को, टिल वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग, दैट टाइम क्या होता है हमारा, उसके बारे में बोलना क्या है, हम क्या बोलेंगे. वो पूरब जा रहा है तो हम पश्चिम जाएंगे. तो इफेक्टिव लिसनिंग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है. कोई चीज को पहले सुनो, उसके बाद उसमें एक प्रॉपर अपना राय दो. Now, utilizing feedback. No one is perfect. I am also not perfect. मेरे से भी हो सकता है गलती है, मेरे में भी गलती definitely I have mistakes. So how can I change? एक proper feedback. When I will take your class, I will ask to you people that what thing should I improve to make my teaching effective. मैं अपना टीचिंग को आप लोग को और इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए मेरे में क्या बदलाव होना चाहिए. बिकॉज यू आर द पीपल हु आर रिसीविंग एंड आई एम द पीपल हु इज सेंडर. एक सेंडर और रिसीवर होता है कम्युनिकेशन में. एक सेंडर एक रिसीवर, इन बिटवीन जो होता है वो फ्लो. दैट इज द नॉइज इज द कैरियर. चलो someone has unmuted. If any question is there, Bharat, Bari. Okay. Now, हमने कहाँ पे थे? सेंडर है रिसीवर में. तो आई एम द सेंडर, यू आर रिसीविंग. तो आपने कितना इफेक्टिवली मैंने आपको पढ़ाया, दैट हाउ मच इफेक्टिवली आई हैव taught you people and what you have received. तो उसके लिए हम कैसे जानेंगे? इन बिटवीन द क्लास सबने मॉड्यूल है, गॉट इट, अंडरस्टैंड? यस मैडम, सब समझ में आ गया? यस. व्हेन आई विल आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन आई विल आस्क अ क्रॉस क्वेश्चन, उस टाइम क्या होगा? अरे यार ये तो समझे ही नहीं थे मैम, क्या बोल. नहीं क्लियर है, मगर उस पॉइंट तक क्लियर नहीं है. सो इसके लिए क्या करना है? A teacher should always ask a feedback. एक फीडबैक चाहिए. तो फीडबैक अब जब हमको आप लोग दोगे, जब व्हेन आई विल आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम यू पीपल विल गिव, तब मेरे को लगेगा नहीं, आई शुड इम्प्रूव दिस थिंग्स इन माई सेल्फ सो दैट माई टीचिंग शुड बी इफेक्टिव. टीचिंग में मैं क्या यूज कर रही हूँ? कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर रही हूँ. मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना? समझ रहे हो? गेटिंग? Yes, ma'am. So, तो मेरे को क्या लगे, नहीं अगर मैं अपने पढ़ाने का थोड़ी ये टेक्निक को चेंज कर दूं तो मेरे स्टूडेंट और ज्यादा अच्छे से समझे. नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल टेक योर क्लास. आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल अगेन टेक अ फीडबैक फ्रॉम यू पीपल दैट हाँ हाउ वाज द क्लास. अब मेरे को स्टूडेंट से फीडबैक आया, नहीं अब मैम जब पढ़ा रहा हूँ वी आर गेटिंग क्लियर टू ऑल द. तो क्या है? यूटिलाइजिंग फीडबैक. सिर्फ फीडबैक ले लेना एक पेपर, पेन पेपर में, एक फॉर्म में, दैट्स नॉट इनफ जब तक हम उसको यूटिलाइज में नहीं लाते. वेदर फॉर योर फैक्टर, वेदर इन माई फैक्टर, और वेदर यू आर इन अ जॉब, तब भी आपको क्या है, आपको वर्क का फीडबैक ले. आपको समझ में आया ना मैंने क्या फाइल आपको दिया? ठीक है ना? इफ एनी प्रॉब्लम है आप मेरे को, बट ईगोइस्टिक जब आ जाता
भाई मेरे को तो सब आता, आई नो एवरीथिंग, मेरे को किसी का कोई परवाह नहीं, मैंने को काम मिला, आई एम डन। लेकिन ये क्या है, ईगोस्टिक के साथ अगर आप में कोई कमी है, आप उसके साथ नहीं बढ़ सकते। सो ऑलवेज बी पोलाइट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। गुस्सा बहुत आता है, मेनी अ टाइम्स यू गेट वेरी इरिटेटेड, हमेशा हर कोई का मूड एक तरह का नहीं होता, बट try to maintain in your professional life your communication skill. Keep your mind cool. Gussa aaya, come in your room. How much you can shout, you shout. But in your professional life, please don't do things. आपका एक गलती आपको पूरा प्रोफेशनल कैरियर को बर्बाद कर। That will be for a short time, your short temperness, but that will make a good. बापरे, उसका ये इतना ईगो लेके चलता है, कैनॉट वर्क, दिस सो र्यूड। उसमें देखो कितना घमंड है, हाउ यू टॉक, द वे हाउ यू टॉक, बट वही आप बात करो सॉफ्टली, ओके सर ठीक है हो जाएगा, डोंट से नो, डोंट से नेगेटिव वर्ड्स, क्या बोलना, हाँ ओके ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल बी। टीचर लोग के साथ आप लोग जब कम्युनिकेट करते, तो व्हेन यू कम्युनिकेट, देखो अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो रहा है, क्यों नाउ एक आप लोग प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स में आप लोग आ रहे हैं। Many a times there will be overloaded tasks to you, overloaded project tasks to you. This is the time आप लोग को यहीं से डेवलपमेंट लेना है। कैसे डेवलपमेंट अब लेना है आप लोगों को, जब कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग आते हो, you will be getting, many teachers will communicate to you people, many teachers will give you assignment, तो माता क्या होगा, so many works to do, so many irritating, कभी भी hyper होता, but never try to talk to your teachers rudely, respect them, हो सकता है डिले हो सकता है, you just ask, you just request to your teachers, so please थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सर, थोड़ा और भी काम है, प्रोजेक्ट्स का और भी है सर, मैं तो एकेडमिक काम में ही इन्वॉल्व हूँ, मैं तो अपना पढ़ाई लिखाई ही कर रहा हूँ, सर थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं उसको और अच्छे से करता हूँ, यू कैन रिक्वेस्ट। और एक होता है र्यूडनेस, सर आई कैन नॉट डू दिस, इतना कम समय में ये चीज नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इन सच टाइम, ये एक र्यूडनेस है। ये है लाइफ का जर्नी जो भी आप लोग एक स्टार्ट करोगे। इंडक्शन प्रोग्राम में इसीलिए रखा जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यू जस्ट पीपल गेट टू अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग एक नया ये में जा रहे हैं, वी आर स्टेपिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू वर्ल्ड, टुवर्ड्स आवर कैरियर। तो यहीं से सब कुछ सीखोगे धीरे धीरे, वन बाय वन स्टेप यू विल गो हाई, हाउ टू हैव पेशेंस इन योरसेल्फ, how to move towards the goal, how to compete, how to adjust with every environment, your maturity level, how you will be problem solving, how innovative you will be, how you can work with a group to do something new. This is the starting period of your journey. और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बोलचाल, your communication. If you are good in your communication, if you are polite in your communication, if you maintain a distance between a teacher and a student, then it will be good. Because see, teachers are not your parents that they will tolerate everything. Parents होते हैं हर चीज tolerate करते हैं. Still you are getting older, they tolerate. But now you people are enough older. अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, so you cannot talk like a child, and your teacher will not treat you as a child of LKG, UKG. They will not pamper you. Your parents can pamper you, but a teacher cannot pamper you. They take care of you, but they will not pamper you. Okay, so you are the decision. Now you are able to take the decision, your right and wrong. Your teachers will rectify them, your parents will rectify them. कभी कभी आप लोग उसके साथ सहमत भी नहीं होंगे, you will not, you will make some arguments, but arguments करने के पहले एक बार सोचना, does my point is clear?
I am correct to my point to do this argument. Are they saying the wrong thing? Okay, now create an environment of trust and confidence. Yesterday in the class also I've told trust is the main thing of building any kind of relationship. Confidence. Life में जब तक confident नहीं बनोगे, you cannot achieve anything. So how your confidence will be show? कहीं लिखा हुआ रहेगा, कोई ID card रहेगा that you are a confident man like Aadhaar card or PAN card, driving license? No. Confidence कहाँ से आता है? Through the way how you are talking, how your expressions, how you are communicating. So अगर आप में confidence, what is the main base of confidence? When everything is clear to you. जब आपके पास सारा फंडा क्लियर रहेगा उस मैटर, उस टॉपिक के ऊपर, तब आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा. नो, आई एम गुड, आई कैन. व्हाई? मैंने तो पढ़ा है, आई हैव डन. तो घबराना किस चीज का? सो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? द बेस ऑफ द कॉन्फिडेंस, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू आर गैदरिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग द आउटर नॉलेज एंड द वे ऑफ योर एक्सप्रेशन. कॉन्फिडेंस लेवल इंसान कहाँ से आपको मेजर अप करेगा? दे विल मेजर द वे यू आर टॉकिंग. आपका जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं कि बस फेंक रहे हो? यू आर saying the false thing. So this is the confidence. Okay, am I clear to you people? या बस सुन रहे हो? Yes, ma'am. हमको लग रहा है सिर्फ सुन रहे हो तुम लोग. Any questions from your side? यहाँ पे लेके कोई questions regarding this slide which I am sharing with you? Any questions? कुछ पूछना है? No, ma'am. Okay, so I move to the next slide. Now, ये communication. Disha has asked one question. Yeah, Disha, please tell. Good morning, ma'am. Good morning, Disha. Ma'am, but it generally happens that sometimes our confidence turns into like overconfidence. So how to handle that situation? Because it might turn. Overconfidence क्यों आता है? When you get overconfidence, क्या matter में हमारा overconfidence आता है? Do you think that it is also a factor of overconfidence? I don't know. किसको किसको लगता है when you are teenager you are overconfident? Ma'am, like How many of you think? Ma'am, I think everyone feels that, but no one will accept it right now. Ma'am, I'm underconfident. You are underconfident. Sometimes I doubt myself. I was correct there, but then also I doubted myself. Okay, that's also देखो confident को हिंदी में हम लोग क्या बोले? आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी बन. We say ना हम लोग ऐसे बोलते ना. अब ओवर कॉन्फिडेंट को क्या बोले? ओवर कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा? अति आत्मविश्वास. अति आत्मविश्वास. तो अति आत्मविश्वासी बनने से क्या होता है? सब चीज अगर अति में हो जाता है तो क्या होता है? उसका पतन हो जाता है. Yes, ma'am. हमारे पेरेंट्स क्या बोलते? लिमिट में रहो, लिमिट से ज्यादा मत उछलो. Limit tends to 0. Limit tends to 0. That is a mathematics formula. Okay. I am talking here about the communication. बात में पेरेंट्स क्या बोलते? ज्यादा उड़ो मत, लिमिट में रहो. तो हर अति का क्या हो जाता है? अगर कोई चीज हम लोग अति में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? उसका 0 में आ जाएगा. नुकसान. एवरी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में अगर हम बोलेंगे डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट का डिफरेंस क्या है तो क्या बोलो? ओवर सिर्फ है उसमें. हाँ, ओवर का मैम ज्यादा मतलब हो जाना. ज्यादा हो जाना. और तो हमको किस में रहना? कॉन्फिडेंटशिप में रहना है कि ओवर कॉन्फिडेंटशिप में रहना है? मैम किसी भी चीज का ज्यादा होना अच्छा नहीं है, तो वो चीज लिमिट में ही रहे तो अच्छा रहता है.
लिमिट में। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत, मेरा प्रिपरेशन इज वेरी गुड, तो हम लोग क्या हो जाते हैं उसमें, ओवर कॉन्फिडेंस। यस और नो? Yes, ma'am. तो दोनों का बेस क्या है? अगर हम यहाँ पे ओवर भी छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंट भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या आत्मविश्वास? I am thinking you are very effective with this Modi's Atmanirbhar Bharat. तो क्या है? कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो दोनों चीज को साइड कर दो। When you are inputting, means want to input something in yourself, खुद में कुछ चीज लाना चाह रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंट को भी हटाओ, ओवर कॉन्फिडेंट को भी हटा दो। किस चीज को हमको अपनाना है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट आई कैन। जब तक आप खुद को बिलीव नहीं करोगे, क्या आप किसी पे बिलीव कर सकते हो? नो मैम। तो लाइफ में क्या जरूरी है सबसे ज्यादा अपनाना? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या? अपने आप पर भरोसा करना। अपने आप पे भरोसा करना। ओके, अपने आप पे भरोसा। इज इट क्लियर दिशा? यस मैम। अब देखो, हम अपने लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते बिकॉज आई हैव क्रॉस माई टीनेज। अभी आप लोग अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते बिकॉज नाउ यू आर ए टीनेज। तो एज भी एक मैटर करता है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। पता है, पीपल ऑफ वेरियस एजेस इट मैटर्स। अब हमारे पेरेंट्स जो है वो ना तो कॉन्फिडेंट है ना तो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंट है। मैम एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। मैंने इतना किया है, आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने अपने खुद के बलबूते पे किया। दैट मीन्स कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो हम लोग को क्या बनना है? अपने पेरेंट्स जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि हम बोल सके ना मैंने तो ये सब कुछ अपने से किया, आई हैव डन एवरीथिंग। गेटिंग? यस मैम। देखो, आई डोंट वांट अ मोनोटोनियस सेशन, आई डोंट वांट टू गिव द लेक्चर्स एंड लेक्चर्स, आई वांट इंटरैक्टिव सेशन। मैंने शुरू से बोला है, आई ऑलवेज वांट इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है क्या है? बोलना। सिर्फ बोलना होता है? आई हैव टोल्ड यू, लिसनिंग। आप बोलोगे, आई विल सेंड, रिसीविंग एंड सेंड। कम्युनिकेशन का एक ही फंडा है, द रिसीवर एंड द सेंडर। बीच में जो कैरियर है दैट इज नॉइस। नॉइस में कैरियर, और नॉइस में भी क्या फ्लोट कर रहा है? इंटरनेट। यस और नो? यस मैम। अभी अभी इंटरनेट में डिस्टर्बेंस आएगा, मेरा नॉइस भी ब्रेक होगा। गेटिंग? So now what are the different means of communication? Any one of you just read means of communication. What are the different means of communication and how many of are? Anish Kumar from Electrical, he will read. Anish Kumar from Electrical. I think he must slept, taken his breakfast and slept. Ankita, oh, Mohammed, Ankit Kumar, yeah, Aniket, CSE. Oh, anyone read for me fast? There are a lot of type of communication. We know in just like phone is a very good communication device because we use phone to send some message, to call and talk something, and news is also a good communication because what are the problems and what are the works in our India, the news tells
just like internet is No. Don't say these things. Okay, just what things are there. You just tell these things and just count that how many means of communication over here are present. Writing, news, phone, internet, sender, media, message, television, reading, email, chat, announcement, conversation, listening, discussion, website. So how many are there? 16. 16 or 17? 16. Who is telling 16? Just tell me. Who is telling 16? देखो ये आप confident or over confident हो? Yes ma'am, I mean यहाँ पे मैंने confident और over confident का अंतर दिखाया. जैसे मैंने बोला 16, कहाँ से 16? All are muted. फिर से चलो count करते. Just count. 16. यही हुआ ना? Yes ma'am. Yes ma'am. यही चीज हुआ ना. अभी क्वेश्चन किया था कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट. अभी सबने बोला 16, एक ने बोला स्ट्रक्चर यार 16 है, 16 है कि 17 है. सबने म्यूट कर दिया. ऑल आर म्यूटेड. चलो एक बार काउंट करते थे कितना है. सो हाउ मेनी आर देयर? 16. So this is clear. Confident, overconfident with example. Yes ma'am. You will say, मैम अचानक क्या करती है? What madam does? है ना? So there are different types of communication. क्या है हमारा सबसे important चीज है हमारा फोन, राइटिंग, न्यूज, इंटरनेट, सेंडर, मीडिया में हम लोग का क्या रहता है? मैसेज, टेलीविजन, रेडियो. अभी हम लोग को फोन में भी मिल जाता है, but still our parents are not quite that much adopted this new technology. They used to see the television. फिर क्या है? email, chat, announcement. We are familiar. There is a age gap between us and our parents. अभी भी उन लोग smartphone we used to have to teach. ऐसे. After some time when the updation come, ये क्या हो गया? देखो फोन में क्या मांग रहा है. क्या करना? What we have to do? They don't know how to update the apps. So age gap हर किसी के साथ आता है. When we will reach that age, you will reach. Technology will reach to some other point. Communication क्या धीरे-धीरे और डेवलपमेंट की ओर जा रहा है. Can you see पहले का फ्रेज अभी का फ्रेज में डेवलपमेंट कितना ज्यादा है कम्युनिकेशन? Yes ma'am. Yes ma'am. पहले क्या था? टेलीविजन में हम लोग पहले न्यूज़पेपर, एसटीडी बूथ, रेडियो, फोन आया. मैम पहले तो पोस्ट था ना. तो मतलब पोस्ट भी था. देखो धीरे फिर एसटीडी बूथ आया. फिर बीएसएनएल में पहले सिम कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था. वी यूज्ड टू पेरेंट्स लोगों को देखकर दैट टाइम आई वाज आल्सो वेरी स्मॉल. पहले सिम कार्ड के लिए दे हैव टू सबमिट सम मनी. कबूतर था सबसे पहले. No, at that time I was not. I don't know in which world I was. Okay. तो ये हमारा क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो क्या हो रहा है? देखो धीरे क्या है? जब फ्रेज हो रहा है एक सेंचुरी के बाद क्या है कि कम्युनिकेशन हमारा डेवलपमेंट की ओर वो इंक्रीज कर रहा है. ग्राफ देखो तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर. तो क्या है? ये टाइम टू टाइम ग्रोथ हो रहा है. और इससे क्या हो रहा है? कोई भी चीज का ग्रोथ होता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है? डेवलपमेंट में. वो हमारा डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहा है. सिर्फ बोलना लिखना दिस इज नॉट कम्युनिकेशन. देखो तुम लोग अभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, तुम लोग भी कम्युनिकेशन तुम लोग में भी है. तुम लोग भी कुछ न्यू इनोवेटिव मतलब कोई चीज ऐसा जो बेनिफिट करे सोसाइटी. जब सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड देन डेफिनेटली योर कंट्री विल बी बेनिफिटेड. इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन का लिंक मैं बता रही. आई एम जस्ट सेइंग द लिंक बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग. यू हैव डेवलप समथिंग बट उसको एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. तो थ्रू विच मीन्स यू कैन एडवर्टाइज दोज थिंग्स. डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे. यू विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन.
दिस इज अ गुड आइडिया, शेयर कर रहे हो अपना आइडिया, ये क्या है, कम्युनिकेशन है, यू आर शेयरिंग योर आइडियाज, योर, हाँ बहुत अच्छा है आपका आइडिया, बट इसमें क्या है, इसमें खर्चा ज्यादा है, यू नीड अ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल भी, देन क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि यू विल सक्सीड, यू मे फेस फेल्यूर्स, कोई वन टाइम में सक्सीड अप नहीं करता है, आपको फेल्यूर्स भी होना पड़ेगा, जब अगेन यू विल गेट फेल्यूर, यू अगेन नीड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, तो कोई भी चीज को इन्वेंट या बनाने के लिए पैसा पहले अपना ही लगता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, Elon Musk. He is a great पैसा example. अपना ही लगता है, यू गेट द मनी, आपको अपना ही पैसा सबको करना पड़ेगा, तो व्हेन यू विल डेवलप, तो उसको कन्विंस करना है कि समवन प्लीज हेल्प मी टू डू दिस थिंग, कन्विंस के लिए भी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना, but देखो व्हेन आई विल डेवलप दिस, यू हैव टू वर्क समटाइम्स, यू हैव टू वर्क इन अ पार्टनरशिप आल्सो, अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले बड़ा कुआं नहीं खोद दोगे, you need partners for that, you need a group, no one can dig a well alone, कुछ बड़ा करना है ग्रुप में काम करना है, ग्रुप में ईगो लेके चलोगे हटो नहीं करना, कौन करेगा इसके साथ, रहना दो इसको, लीव इन, तो कम्युनिकेशन देखो हर जगह पे इंपॉर्टेंट, घर में भी देखना, जो बच्चा प्यार से बात करता है ना, देयर आर मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर, जब बहुत ज्यादा भाई बहन हो जाते क्या होता है, कोई भाई बहुत मीठा से बोलता है, कोई सिस्टर होती है, पापा हमको ना ये चाहिए, भैया ना हमको ना मार दिए, दिस इज सो स्वीटली, पापा को लगता है नहीं, तब भैया उसको जस्ट थोड़ा सा कुछ टच अप किए हैं, बट शी हैज कंप्लेन टू हर फादर लाइक दिस, अब भैया का तो खैर नहीं, फिर तो भैया पिट गया, A simple example from your home I'm giving you, बचपन में जो चीज होता है, अब वही उसका भाई अगर बोलता है इस ब्रदर से, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो कैसे बोल रहा, हाउ इज सेइंग ड्यूटली, एक तो मारा भी है, बस द वे हाउ इज सेइंग, किसके किसके टाइम में ऐसा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस थिंग, तपोमय, एंड नेक्स्ट you can share, Raj Lakshmi, okay, Someshwar Sahu, मतलब ये चीज आप लोग की हो, तो सर राज लक्ष्मी, can you tell me how many times you have done this type of things for your brother? Hello ma'am, I have done many times to my brothers. Okay, Shruti Priya. Shruti Priya. Yeah, Shruti, I'm तेरा voice break हो रहा है बेटा, like teachers का. And in my case, my brother does that. My mom loves my brother more, and I in front of my father does that because my father loves me more. Okay, oh, as usual, daughters are very lovable to their fathers. पापा की परी. And the boys were what? पापा के शत्रु? No, मैं मम्मा के मगरमच्छ. Okay. देखो ये चीज मैं बताना चाह रही, देखो कम्युनिकेशन स्किल का क्या है, किसी से मीठा से बोलने में भी आपको उतना ही टाइम लगता है, किसी से झगड़ा करने में भी उतना ही टाइम लगता है, किसी से इम्पोलाइटली बात करने में उतना, तो हमको अपना क्या करना है, कोई भी लाइफ में देखो, मेनी सर्कमस्टेंस, नॉट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं, अपना पर्सनल लाइफ में भी जो है ना, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग फ्रॉम दिस सेशन, इफ आई स्टार्ट अ सेशन विद अ हार्श फेस, या मेरा सेशन है, आई विल टेक द सेशन, आई एम जस्ट गिविंग लेक्चर्स एंड लेक्चर्स, आई डोंट थिंक दैट यू पीपल विल टेक मच इंटरेस्ट, will you people take interest to listen to these things?
अभी जो इंटरेस्ट के साथ आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन करो, दैट टाइम वुड यू, अगर मैं वैसे स्टार्टिंग करती सेशन, तब क्या मेरे साथ इस तरह से इंटरेक्शन अब करते हैं? नो मैम। ना मैम नहीं कर देते, नहीं कर सकते थे। अभी आपके साथ मेरा इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं आपके साथ इंटरेक्टिव हो रही हूँ। एक रिलेशन बन गया मैम। अच्छा, हाँ, एक रिलेशनशिप। जब तक हम आपके साथ इंटरेक्टिव नहीं होंगे, विल यू बी? नो। तो फर्स्ट थिंग क्या है, बीइंग अ टीचर, आई हैव टू बी इंटरेक्टिव, आई हैव टू ओपन टू यू पीपल, then only you people will give me a proper feedback. Yes or no? yes ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया? I have not seen you people physically, you have not seen me physically, I haven't taken your class, you haven't attended my class, but everything is virtually, but we are having a good relationship through our communication skills. Is it correct? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, I'm coming to another session. Okay, the next session, that is DICS. I missed one. Okay. DICS, the extend and balance का chart होता है. D stand for dominance, I stand for influence, S stand for steadiness, and C stand for क्या है? Conscientiousness. अब ये बैलेंसिंग है, एक टास्क ओरिएंटेड होता है, एक पीपल ओरिएंटेड होता है। अब देखो, डोमिनेंस में क्या है, हम लोग रिस्क टेकिंग हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस में क्या, हम लोग सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं, वी आर सोसाइबिलिटी, एम्पैथी, मोटिवेशन, वी आर डूइंग सम इंटरपर्सनल रिलेशंस। स्टिडनेस में क्या है, हमारा सर्विस है, हमारा प्रोजेक्ट है, हम लोग को लिसनिंग ये है, टीम वर्क है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स। एंड दिस वन कॉन्सिस्टेंटनेस में क्या है हमारा, क्वालिटी कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपका, इसमें टाइम मैनेजमेंट। दिस कॉन्सिस्टेंटनेस में टाइम मैनेजमेंट, कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, प्रॉपर टाइम में उसको प्रेजेंट अप करना और बिफोर टाइम में प्रेजेंट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट वन, जो टैक्टफुलनेस, किस तरह से आप टैक्टफुली उसको नहीं हो पाता है, हाउ टैक्टफुली यू एडजस्ट। इतना भी चालाक मत बनो कि नेक्स्ट टाइम दे लॉस्ट द ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये पढ़ोगे आप लोग आगे में भी, आप लोग कोर्स में भी है, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? क्रेडिबिलिटी, कर्टसी, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कॉन्क्रीटनेस एंड कॉन्साइसनेस। तो इसका हमारा क्या है आउटकम? व्हाट इज द आउटकम? क्रेडिबिलिटी क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड करता है। कर्टसी क्या करता है? इंप्रूव्स आवर रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी क्या करता है? मेक्स इजी। करेक्टनेस क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से समझ गए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, आई होप सो। एंड कंसिस्टेंसी क्या है? हमारा स्टेबिलिटी, हम उसमें कितना स्टेबल है अपने आप में, हाउ मच स्टेबल वी आर इन अवर वर्क। एंड कॉन्क्रीटनेस क्या है? कॉन्फिडेंस, हमारे रेनफोर्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्साइसनेस में हमारा क्या है? द वे हाउ वी आर सेविंग आवर टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट 4S, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी एंड स्ट्रेंथ। ये तुम्हारे लोग के लिए एकदम क्या बोलते हैं, फॉर यू पीपल इट इज पता ना, गांठ बांध लो। यू पीपल जस्ट टाई अ नॉट, 4 years का 4S, that thing. Economizes, impresses, convinces and appeals. This 4S will be the not बांध के रखो अपने लाइफ में। जब तक बीटेक करके एमटेक करके अच्छे जगह पे सेटल नहीं हो जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पहले भी बोला था व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
Please, anyone can read this one for me. The barriers of communication. Abhishek Kashyap. Yes, ma'am. Yeah, please you read. Barriers in communication definition. Due to various barriers of communication, when the message from the sender is not received by the receiver in its original form, then such obstructed and ruined form of message is called miscommunication. Yeah. I have sent some message to you people. In between, there is one person who is carrying that message. But due to some physical barriers, I have earlier explained in a very short. So, वो क्या होता है हमने ठीक से सुना नहीं और वो मैसेज किसी को कन्वे करना है. Someone has told the message in a different way. तो वो हमारे में क्या होता है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. हमको गलत मैसेज रिसीव हो जाता है. The proper message which is being sent by the sender वो रिसीव नहीं होकर हमारा क्या हो जाता है गलत मैसेज सेंड होता है. That we call a miscommunication. Now, barriers to communication. Okay, please read it once, the barriers of communication. Now, barriers of communication. Individual barriers, organization barriers, and other barriers. ठीक है. Next, the 7 barriers. क्या है? Physical barriers we know. The perceptual barriers we can know. Emotional barriers, cultural barriers, language barriers, interpersonal barriers, gender barriers. ये हमारा different types का 7 barriers. Noise. As already I have told, the noise is the thing जो हमारा क्या है मेंडर जो सेंडर है हमारा inaccurate message हमारे पास एक travel up करता है. Noise. So noise is such a distraction or the interference that occurs as the communication is being encoded, transmitted, and decoded can obstruct the transmission of the message. There are many different types of noise that can render the message inaccurate, unclear, or even mean that it is not received at all. मैंने बोल रहा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं आप लोगों को, पता चला यहाँ पे मेरा म्यूट किया हुआ है. I know I'm just saying, but ये क्या है बंद है. ये भी एक कम्युनिकेशन के लिए हमारा बैरियर है. Next, physical noise. This one I have told. Technical noise. That is the problem we are facing in everyday life, especially in the corona time. Okay. Next. Types of noise: technical, physical, social, and psychological. Can you see? Yes, ma'am. तो हमारा क्या क्या है सोशल नॉइज, फिजिकल, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन करता है. कभी कभी देखे होगा पापा लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है तो क्या बोलते हैं, ठीक है हम घर जाके आपसे बात कर रहे हैं, बाद में हम आपसे बात करें, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर ट्रैवलिंग, वी आर इन अ ट्रैफिक नॉइजी प्लेस. ना हम बोल पाते हैं ढंग से, ना वो सुन पा रहा है ढंग से. तो मिसकम्युनिकेशन को हटाने के लिए क्या होता है, हमारा नॉइज से हम लोग दूर चले जाते हैं. नेक्स्ट, इमोशंस. कम्युनिकेशन में इमोशंस का एक बहुत अच्छा मतलब रोल है इसका. When we are in stress, हमारा बात करने का मन नहीं होता है. When we are happy, तो बहुत हंस के हम लोग बात करते हैं. कभी कभी हम लोग अपना इमोशंस को छुपाते हैं. We are having certain things. कभी कभी इस टाइम आप लोग का ब्रेकअप हो सकता है. In your life you will feel breakup. मूड बहुत खराब है, ब्रेकअप हो गया मेरा, उसके साथ झगड़ा हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, मूड बहुत, वी आर हाइडिंग आवर इमोशंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स. क्या हुआ तुमको, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, एवरीथिंग इज गुड. घर में बोल नहीं सकते कि ब्रेकअप हो गया. दिस काइंड ऑफ थिंग आर देयर. देखो लाइफ है, दिस वन इज योर एज, यू गेट एवरीथिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू, इमोशंस ऑल्सो प्ले अ वेरी ग्रेट रोल. व्हेन यू गेट अ
After certain times you will get a job, good job. तब हमारा पहला जॉब है घर में, मम्मी पापा का इमोशंस हाई, अब लगेगा लाइफ में कुछ कर लिया, आई हैव अचीव्ड समथिंग, देखो मेरे को फर्स्ट जॉब लेटर वहां से आया है. तो दिस आर द इमोशंस, है ना. पुअर लिसनिंग, पुअर लिसनिंग एंड हैस्टी इवैल्यूएशन इज अ मेजर प्रॉब्लम. कभी भी कोई चीज बात होता है तो आंख नाक कान खुला होता है ऑलवेज. अब ये पिक्चर सबको बोल सकते हो, व्हाट यू कैन सी. फर्स्ट वन एक्सप्रेशंस, second one silent and third one wow, मतलब kind of, और मतलब just reaction मेरे को पसंद नहीं है. so चलेगा. Okay, then next in perfect या फिर better, और ऐसा अपने ऊपर डाउट. What will happen? Question. Thinking or just shouting on someone. Yeah. Okay, very good. Yeah, this is a picture of a child who is not going to school, enjoying his days. I miss my days. Playing What? with mud. He is in Expressions. What is emotion? He is finding in his own happiness by playing in desert or mud. बेफिक्र इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा कोरोना आया, कौन सा ओमिक्रॉन आया, मेरे को तो टाइम पे खाना मिल रहा है, मस्ती करो. ओवरजॉयड तो सिंपल है ना, ओवरजॉयड. ये क्या है? What this picture shows? Family time. A good family time, a happy family life. तो हमारे ये सब क्या है? इमोशंस, है ना. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंजीनियर्स लाइफ, जो हमारा मेन मुद्दा है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियर्स डे टू डे लाइफ. फॉर एन इंजीनियर कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन विदाउट विच ही कैनॉट सर्वाइव. Importance of communication skill starts from their college days, which further is carried out in interview, jobs, and their day-to-day life. As the engineer design the future, communication need much more for their survival. Is it? Man, I have given you a lot of things, lot of knowledge about communication. Do you think for you people, does these 4 sentences satisfied? आपको लगता है ये 4 पॉइंट एक इंजीनियर्स के लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का अहमियत को बता रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने पहले भी चीज को एक्सप्लेन किया है. दिस 4th पॉइंट क्लियरली वेरीफाइड इंजीनियर्स लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल है ना. क्लियर टू माय पॉइंट? Clear to my slides? Yes, ma'am. Okay, next. Why is communication important for an engineer? As an engineering student, you need to develop good written and oral communication skill. As an engineering student and later as an engineer, you need to know how to express your thoughts, present a concept for a product or a service, present an engineering analysis of a problem and its solution, or show your findings from an experimental work. These things I have explained you people. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Communication skill को अभी से क्या करना है? Adopt करना है. If you are not good in English, read some grammar books, read some newspapers in your phone only, and try to speak with your friends. Why? 5 reasons why communication is important in engineering. Running an efficient meeting, working with people besides engineering, working with other cultures, sharing ideas and sending emails. कभी भी वर्किंग प्लेस में जाओगे विदाउट इंपॉर्टेंट ईमेल्स, कैसे ईमेल सेंड करना है, कैसे कोई चीज का अटैचमेंट करना है, कैसे किसी बॉस से बात करना है, कैसे उसको ईमेल करना है, एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन योर रिटन कम्युनिकेशन. नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक बार पढ़ लो. जस्ट रीड अहेड. There's a various table. If you want to take the screenshot, just take a screenshot and read it. Okay. Yes, ma'am. Next, soft skills में हमारा आता है communication skills. When we write about soft skills, that is your communication skills.
इसमें हमारा क्या क्या है? प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी, नेगोशिएशन, क्विजिंग, डिबेट्स एंड सेमिनार्स, इवेंट मैनेजमेंट एंड क्रिएटिविटी एनहांसिंग। ये हमारा है सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है और हार्ड स्किल्स क्या है? रेफर टू टीचेबल स्किल जॉब इफ स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट कैन बी क्वालिफाइड और मेजर्ड। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? रेफर टू एन इंडिविजुअल सोशल एबिलिटी एंड हाउ दे रिलेट एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल। अब हार्ड स्किल्स हमारा देख लो क्या क्या है। सॉफ्ट स्किल्स में हमारा क्या है? तो कम्युनिकेशन किस में आया? हार्ड में आया कि सॉफ्ट में आया? सॉफ्ट। और बीटेक का जो डिग्री आप लोग को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल के साथ, वो क्या हो जाएगा? हार्ड में कि सॉफ्ट में? हार्ड में। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, सॉफ्ट स्किल्स फॉर योर रिज्यूमे। होता है ना आजकल रिज्यूम बनाते हैं तो हार्ड स्किल्स, दिस इज माय हार्ड स्किल, दिस इज माय सॉफ्ट स्किल वी राइट। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आ जाएगा देखो। ग्रुप वर्क हम बोल रहे, ग्रुप वर्क, टीम वर्क। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? बोलते हैं ना आई एम वेरी गुड इन सॉफ्ट स्किल्स। अब लिख तो देने का लिख दिया, अब कोई पूछ देगा इंटरव्यू में क्या है आपका सॉफ्ट स्किल्स, बताओ। कम्युनिकेशन इज अ सॉफ्ट स्किल में बताओ क्या क्या। These things are your soft skills. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, Disha, please read. The lack of ability of an individual to deliver his views efficiently at the interview led to rejection of... Please read it again. Effectively. Yes, ma'am. Please read it again. The lack of ability of an individual to deliver his views effectively at the interview led to the rejection of even the most brilliant candidates. This is because training institutes do not make an effort to ensure that the candidate develops their skill in a wholesome manner, which can contribute towards client handling, the team and communication skill. Okay, what you have understood that when we say we have a meritorious student, they are being rejected in many interviews. So why? Because do not take an effort they used to make because of the institute they are having. They are not preparing their student to build their whole, means the communication skills. उन्होंने बस डिग्री पे ध्यान दिया, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं। So the education system has done this thing that the engineering students have the communication skills in their syllabus, so that they will read and this will build their wholesome manner. Their whole education thing will be completed, so they can be getting good jobs. Only one side effort cannot be effectively. Okay, you should also try from your best. We teachers try from our level, but you are the people who will adapt them. This is a very good quote, that why I have presented in my slide. This is told by Siddharth Barwani, the Vice President of Jet King Infotrain Limited. कभी कभी मेरिटियस स्टूडेंट को भी हमारा कम्युनिकेशन स्किल गुड नहीं होने के कारण उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। So I'm concluding my session. If anyone is having any questions from your side, you can say. Have you enjoyed the session? Have you gathered that the session was informative to you people? I just want to ask. This is a feedback from you people I just want. How many of you will give me a feedback? I just want. No one will give me a feedback. Yes, ma'am. This session was awesome. Only awesome. Have you understood or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have I justified? It was good. Yes, ma'am. Yes, No ma'am. doubt. Thank you, ma'am. Have I justified with the title that communication skill and its importance in your professional career? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Photo is visible of your profile. Photo is not at all. I mean to say, you're not able to see me, right? Yes, Yes, sir. Yes. In the But laptop, here it is showing low. a lot of It is people not have. Yes. Okay, sure.
And all of you are in first year right now? Yes, sir. Yes, sir. So your college has just started, isn't it? Yes, sir. All right, all right. Sure, sure. It started, but in online mode only. In online mode, isn't it? Yes, Okay, no sir. problem. I'll just share a small presentation with all of you because I have thought it would be most suitable presentation to present in front of you. And you being the first year freshers of your college, Chaibasa Engineering College. So this will be a very wonderful and handy seminar. Why? Because at the end of the seminar, you will be learning a very unique thing about a unique problem. And what is a unique solution to the unique problem? That is a matter of discussion. So are you able to see my screen, which I'm sharing for all of you? Are you able to Yes, sir. Yes, sir. All right. So as you can see on the screen, the title is given as The Art of Mind control. Mind Control. All right. So throughout this presentation, I will be taking hardly 25 minutes of your precious time. So throughout the presentation, I would like all of you to pay full attention to the details which I'm going to discuss over here. All right. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. And in case if you have any problem, if you have any difficulty to understand any of the concepts which we're going to discuss here, you can definitely unmute yourself and ask me for further clarification. And if the clarification will take more time, I will just put your doubt at the end of the session. All right. So shall we start? Yes, sir. Okay. तो मेरा सवाल सबसे पहले आप लोगों से ये है कि why do you think there is a necessity for mind control? Okay, first of all, what do you mean by mind control? Can anybody volunteer to answer? Sir, actually, mind controls means sometimes we got mood swings, or our mind cannot be stable at one point at one thing. Correct. Yes. Correct. So what is the problem with that? That thing that Sir, it is very important to control our minds because if we are got aggressive, we have to control our minds that we cannot tell anything bad or anything rubbish to anyone, or that Okay. will hurt anyone. Okay. I accept that. I accept that. So mind control is a very much required parameter for our overall upbringing and our overall personality. Do you agree with me? Because if our mind is not in our control, then what will happen? Things will go hay and way. Even for attending this webinar to an unknown person like me. See, right now my camera is not working and I am unable to show you my face at least. So if at this point of time I lose my anger and I start shouting at all of you what kind of arrangements you have made, or I start shouting at my gadgets which I'm using, what kind of facility it is giving me. So this presentation will not go very smoothly, isn't it? So mind control is a very wonderful and unique phenomenon which all of us should learn. And that technique is coined as the art of mind control. There is an art behind that. Just like teaching is a skill, you know, teaching, not everybody can teach. Just like I have been hearing the previous madam who has been speaking something on communication skills. This communication skill is nothing but it's an art. Not everybody can communicate effectively. It is a fact. That's why all of you have been taught the art of effective communication, isn't it? Similarly, this mind control is also very much required. But to know how to control the mind, there is an art behind that. ऐसे ये खाना कोई नहीं बना सकता, सब लोग नहीं बना सकता खाना. सब लोग बोलेंगे क्या बनाना था, बोलेंगे मैगी बनाना था, चाय बनाना आता. ज्यादा से ज्यादा क्या आता, दूध उबालना आता है, दूध में बिस्किट डुबो के पीना खाना आता है उसको. That's all. Nothing more you may be knowing at this level, isn't it? So similarly, there is an art which is to be learned to control the mind. Okay. ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या डायग्राम दिखा रहा है? Sir, a people's mind, what is thinking at what time? Correct. No, you see so many vectors are coming out of his head. वेक्टर समझता है ना, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर. देखो कितने हम लोग वो बनाते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम 11th 12th में, याद है आपको? वैसा सर्कल दिख रहा है इसका. So much he has to think about so many random thoughts which is entering into his mind and coming out of his mind. And to name a few of the forces, these are those present on the screen: trouble, fear, depression, noise, migraine, anxiety, scare, tired, distress, failure, headache. Oh my God, ये तो बहुत कम फोर्सेस दिखाए हमने जो आपके माइंड के अंदर आता है और आपके माइंड को बेकाबू बना के चला जाता है.
So an average person has to face so many different kinds of emotional turmoil inside his head. Because we are a social being. No, we are not. We are supposed to be social with everyone, not only on screen, but real life socialism. So for that, your mind has to handle all those relationships, isn't it? And for that, the art of mind control has to be learned. We will see in the further PPTs. Okay. So this entire presentation is dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, or commonly called as ISKCON, or famously known as the Hare Krishna movement also. And we represent Akshay Patra. Akshay Patra has been feeding 20 lakh children every day across the Indian subcontinent. And during this COVID lockdown period, we have also fed more than 6 million meals till date, not every day, this is till date. And this has been going on since 2 years by the blessings of all well-wishers like you all. And all right. So he's the founder Acharya for both the institutions, the Akshay Patra Foundation, as well as the Hare Krishna movement. So based upon his teachings, we're going to see how the art can be learned to control the mind. All right. Okay. So of course, I'll be asking a lot of questions so that you can become attentive and alert. And at the end of the day, you can learn something very much useful. So can anybody answer this in one sentence? Why is the necessity of controlling mind? I mean, जरूरत क्या है mind control करने की? एक लाइन में बताइए. So to focus in anything. Okay, very good. I accept that. Second person, can anybody volunteer? To be efficient and effective. Very good. All right. Some more answers I can expect. बस दो answer. बाकी? Okay. To not lose ourselves. To not lose our, very good, very good. Now, I'll tell you why there is a necessity for controlling the mind. I'll give a very technical answer. You will be happy with it. See, answer me this first. Mind is a factory of dash. Fill in the blanks. आपको 2 number मिलेंगे इसके लिए. Factory of thoughts, variety of thoughts. Exactly. You got it right. Mind is a factory of thoughts. अब अगला सवाल आप लोगों के लिए है. कितने? Millions of thoughts. Millions of thoughts, but no. You have some countable number. क्योंकि countable, whatever gets measured gets done. That is the English saying. Infinite thoughts तो होता है, but कितने? Sir, millions of thoughts. Maybe hundreds or thousands in a day. Hundreds, bus hundreds and thousands. That's all. Sir, millions of thoughts per day. 1 divided by 0. 1 divided per day. Okay. Wait. So there has been a wonderful scientific research. And that scientific research shows that 60,000 thoughts appear per day in the factory of the mind. Factory है, जाहिर से बात है, प्रोडक्ट निकालेगा. प्रोडक्ट क्या निकालेगा? थॉट्स, है ना? और वो 60,000 यूनिट्स निकालता है एक दिन में. समझ रहे? ऑब्वियसली बात है, अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है तो एक ही मुद्दे पे उन लोगों का कंक्लूजन खत्म नहीं होगा. There are several other factors which we have found. It is surprising to know that 70% of them are negative. जो 60,000 आता है, उसका 70% करेंगे तो कितना आएगा? 70% Sir, 42,000. 42,000 thoughts are अब negative मतलब ये मत सोचिए कि भाई किसी का मर्डर कर देना. No, not that. But negative in the sense this has nothing to do with your overall spiritual being and overall mental, emotional, physical well-being. Nothing to do with that. Means this kind of thoughts are unproductive. They are not at all going to help you anyway. That is the meaning of negative thoughts. ऐसा नहीं कि हम दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचे, वही negative thought होता है. Even we depress or underestimate ourselves also. That is also called as negative thought. Understood? So it's a very striking data which the scientists have revealed that 60,000 thoughts हमारे दिमाग में एक दिन में आता है. एक दिन की बात कर रहे हैं, और ऐसा हम एक हफ्ते नहीं, सालों साल जीते, हम कम से कम 60 साल तक जीते हैं, और एक दिन में इतना आ गया तो 1 into 30 into 12 into 60 into 60,000. तो इतने थॉट्स एक लाइफ टाइम में एक बंदे के अंदर आता है. और एग्जाम आ जाए तो बात है क्या कहना, एग्जाम के पहले तो पूरा थॉट ही बंद हो जाता है. 60 का 0 बच जाता है बस. Anyways, so that is a requirement for controlling this. Yes or no?
Yes, sir. है ना? Yes, sir. 70% आपका अनकंट्रोल्ड है भाई, 70% नेगेटिव है। एक तो 7,000 आ रहा है, हमको पता नहीं था, ऊपर से जितना आ रहा है उसमें से ऑलमोस्ट यू कैन से 70%, यानी कि 70% ज्यादा होता है भाई, डिस्टिंक्शन आ जाता है 70% में पहले के जमाने में, आजकल तो पता नहीं। 70% मीन्स सो मेनी ऑफ देम आर कचरा इनसाइड योर माइंड, इट हैज टू बी स्वीप्ड एंड ब्रूम्ड एंड क्लीन्ड आउट, है ना? ओके, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, क्यों? Those विचार will become in future your words, and if you don't watch your words, they will become your action. If you don't watch your actions, they will become habit, and if you don't watch your habits, they will become character. अच्छा ठीक है, अब मुझे साइकिल याद करिए। सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है? थॉट्स पे। थॉट्स पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो थॉट्स क्या बन जाएंगे? वर्ड्स बन जाएंगे। Words later on convert themselves into action. Action later on becomes habit. Habit later on becomes character. यानी कि आपका जो लाइफ का डेस्टिनी है ना, वो सब चालू होता है आप किस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग के अंदर पाल के बैठे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सी, एक बंदा चेन स्मोकर एक रात में नहीं बनता, एक बंदा ड्रंकर, ऑफ कोर्स आप लोग होंगे नहीं, मुझे ऐसा कोई शक नहीं है आप लोगों के ऊपर, बट हम देखते हैं ना समाज में अपने आसपास के एग्जांपल्स। अ पर्सन डज नॉट बिकम अ बैड बॉय और अ बैड गर्ल सिंपली ओवरनाइट। नो, दिस एक्शन हैज बिकम अ हैबिट बिकॉज he has been repeating these words to himself or herself, and that words have come from the thoughts. So how much it is necessary to control the thoughts? जैसा कहता है ना, लोहा गर्म जब होता है तभी उसे हथौड़ा मारना होता है। कोई मटके का आपने देखा, कुम्हार जो होता है ना, मटके को शेप दे रहा होता है, गीला मटके गीले मिट्टी को शेप दे रहा था, उसी टाइम पर जो शेप दे देंगे ना हम, वही शेप फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। एक बार वो मटका जम गया, या फिर वो एक बार वो आयरन जो है, लोहा जो वो ठंडा हो गया, क्या हथौड़ा मारेगा, टूट जाएगा वो। तो आपका फ्यूचर भविष्य कैसे होगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैरेक्टर, दैट इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट, दैट इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन योर एक्शन। वो जो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे। सो थॉट को थॉट लेवल पे कहते हैं जड़ से उसको निकाल देना, समझ रहे? सो दिस इज कॉल्ड एज रूट कॉज एनालिसिस। हम अपने रूट कॉज को अगर समझ गए प्रॉब्लम्स के, तो आसानी से प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा ये समझाने के लिए हाउ दिस अनकंट्रोल्ड माइंड इज अ वेरी वेरी बिग एनिमी, सच अ बिग एनिमी, सो दैट इट कैन कॉज योर लाइफ ऑल्सो। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? डियर देख रहा है, राइट? ओके, अब आपको टास्क देता हूं मैं। ये टास्क है आपका, असाइनमेंट आप लोगों का, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों का। वो असाइनमेंट है, आपको ये डियर पकड़ना। तो क्या करेंगे? हाँ, बंदूक नहीं चलाना, सलमान खान की तरह जेल नहीं भेजना मुझे आप लोगों को। सर नेट और रोप सबका यूज करेंगे। और डियर बहुत फास्ट भागता है, आपके आने से पहले वो अपने पीछे वाले आंखों से देख लेगा कि आप पीछे से आ रहे हैं। सर उसको हम लोग पकड़ेंगे, उसके पीछे भाग के उसका आगे जाल लगाएंगे। आगे जाल लगा यार, कौन सा आदमी आगे जाल लगा के आपको फाड़ता है? सर जाल पहले से लगा के रखेंगे और उसको उस एरिया तक बस लेके जाएंगे फिर। अरे शेर तक नहीं पकड़ पाता एक डियर को, हमारा तो कौन सा खेत के बोली। सर हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग पास बहुत आइडिया है। सर उसको सर चारा देंगे जिसपे हम लोग कुछ मिला देंगे जिससे चारा देंगे, गाय थोड़ी है चारा खाएगी तुम्हारा। सुनो मैं बताता हूँ, बेहोश किया जाएगा उसको। हाँ, बेहोश इंजेक्शन, उसको बदहोश करना है। कैसे? डियर के पास है ना एक वीक सेंस है जिसका नाम है कान। अब ये जो चीज है ना, ये शिकारियों को भली भांति पता होता है, ठीक है? अब वो लोग क्या करते हैं, डियर अपना मस्त चारा खा रहा होता है या फिर घास खा रहा होता है जंगल में, और शिकारी जाके उसके आसपास, मतलब एकदम आसपास नहीं, थोड़ा इर्द गिर्द में एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक चालू कर देता है, बहुत सूदिंग म्यूजिक। अचानक से नहीं, ग्रेजुअली वो स्टार्ट करता है, एंड द डियर ही इज एनग्रॉस्ड ईटिंग द ग्रास, नो, एंड he starts capturing the sound and he becomes deeply engrossed in hearing the sound vibration, very very nice sound vibration. Generally what the shikari do, they generally play a flute, और flute जैसा कुछ होता है, exactly flute नहीं होता, means what they do is produce sweet sound. Sweet music produce करने से क्या होता है, वो deer जो होता है एकदम स्तब्ध रह जाता है, स्थगित रह जाता है अपने जगह पे, और उसी मौका का फायदा उठाते हुए
शिकारी अपना बाण छोड़ के उसको बेहोश कर देता है। तो देखिए, जंगल में पाए जाने वाले एक डियर को पकड़ने के लिए उसका जो ईयर है ना, ईयर इज सफिशिएंट, बिकॉज उसका जो वीक सेंस ऑब्जेक्ट है वो साउंड। मैं आपको 4 और एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, ये क्या है? एलिफेंट, हाथी। तो यदि पकड़ना तो क्या करेंगे आप बताइए? बेहोश इसको भी। Find his weakness. हाँ, इतना आसानी से बेहोश नहीं होता। Weakness, sir. हाँ, वीकनेस का, वही तो पूछा मैं तुम्हें, वीकनेस क्या है इसका? सर उसका जो हियरिंग पावर है वो 20 हर्ट्ज के नीचे तक सुन सकता है, तो उसके सामने अगर कुछ बजाएंगे तो वो दूर भाग जाता है। करेक्ट। तो इसके कान भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप देखने से पता लग जाएगा कि इसका कान जो है इसको वीक सेंस नहीं, इसका एक और सेंस जो है वो वीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। आंख सर, ये पीछे नहीं देख सकता। आंखें नहीं, आंखें बहुत भाई, तुम उसको 5 साल के बाद मारोगा ना, 50 साल बाद तक तुमको आके मारेगा वो, इतना वो देख लेगा तुम्हें। हाँ, आगे और सर, गड्ढा से ऊपर उठ नहीं सकता। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं आपको इसके लिए साइंस बताता हूँ। ये जो बड़े बड़े हाथियां होते हैं ना, ये बड़े बड़े हस्ती भले होते हैं, लेकिन इनकी जो वीकनेस है वो टच है, टच। इनको पकड़ने के लिए ट्रेडिशनल जो मेथड एम्प्लॉय किया जाता है, साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में पाएंगे आप इस चीज को, बहुत फेमस है वहां पे। तो महावत के पास है ना एक फीमेल एलिफेंट ट्रेन किया हुआ रहता है ऑलरेडी। फीमेल एलिफेंट जाके उस मेल एलिफेंट के बाजू से निकल जाती है, बस टच करके, यूं ही ऐसे छू के निकल जाती है। और द elephant becomes so maddened by the touch of the female elephant that he starts following her. और क्योंकि वो फीमेल एलिफेंट ट्रेंड है, आगे खड्डा है, उनको तो भले बात ही पता है, लेकिन पीछे तो हमारे मदहोश दीवाना आ रहे हैं, उनको क्या पता, जाके गड्ढे में गिर जाता है। एंड इट इज नॉट सप्लाइड फूड फॉर 30 days 40 days, वीक हो जाता है, फिर महावत आके उसको पकड़ लेता है। यानी कि सेंस ऑफ टच जो है, स्किन, ये एलिफेंट के लिए इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल काय शरीर भले ही क्यों ना हो, स्टिल द एलिफेंट इज वीक एट इट्स नीज बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेंस कॉल्ड एज सेंस ऑफ टच। एक और एग्जांपल, ये तो बहुत सिंपल है, इसका बताओ क्या अनकंट्रोल्ड सेंस है? सिंपल है ना ये तो। वाटर, वाटर नहीं, सेंस की बात कर रहा हूं। इनके पास कौन सा ऐसा इंद्रिय है जिसका जो इनका बहुत कमजोर है? सेंस नहीं, फिश को कैसे पकड़ते हैं हम? चारे से। सेंस ऑफ वाइब्रेशन, माउथ। एग्जैक्टली, माउथ के अंदर क्या रहता है? टंग। यस, गिल्स नहीं भाई, गिल्स तो फेफड़े होते हैं बेचारे के। टेस्ट। इवन दो फिश को पता है कि मेरे मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, भाई, बहन, बेटा सब लोग मर चुके हैं फिशरमैन के हाथों, क्योंकि फिशरमैन ने एक बो डाला है, बो के आगे रस्सी है, रस्सी के नीचे हुक है, हुक में एक चारा लगा हुआ है। चारा कुछ नहीं, आटा होता है, वो कुछ नहीं होता। उनको, फिश को पता होता है कि भाई मेरे सारे के सारा खानदान जो है इसी चारे के चंगुल में आके फंस गए, फिर भी बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेंस कॉल्ड एज द सेंस ऑफ टेस्ट, इट गेट्स caught up in the fisherman's fishing rod. ये एग्जांपल क्या है? क्या देख रहे हैं आपको पिक्चर में? bees on cloud. हाँ, अब हनी बीज का क्या वीक सेंस है? स्मेल। एग्जैक्टली, इतने मदहोश हो जाते हैं वो इतने मीठे मीठे फ्लावर्स के स्मेल सुन के कि वो फ्लावर्स में बैठ जाते हैं। और फ्लावर्स, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि शाम ढलते वो अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं, और फिर अगले दिन जब सूरज उगता है तो अपने आप को ब्लॉसम कर लेते हैं। यानी कि जब ब्लॉसम करने के बाद हमको जो दृश्य देखने को मिलता है वो नथिंग बट डेड बॉडीज ऑफ द बीज। सो दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ सिंपली बाय देयर वीक सेंस कॉल्ड एज स्मेल। और ये बटरफ्लाई। एग्जैक्टली, बटरफ्लाई वो रोशनी को देख के अपना जान तक जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। बटरफ्लाई, मौत, कीट, पतंग, ऐसे बहुत सारे देखे होंगे अपने रात को अपने घर पे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर हम इंसानों की बात कर रहे तो हमारा वीकनेस क्या है? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, क्या है? माइंड। स्मार्ट आंसर, ओके, वेरी गुड। यू हैव नॉट डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक सब हटे हैं बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, हमारा वीक सेंस है ये, टड़ा, क्या है? सेलफोन। सेलफोन नहीं, मोबाइल एडिक्शन।
एक छोटा सा वीडियो है, पता नहीं वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर बताना चलेगा चला तो ठीक है। चल रहा है क्या, दिखा रहा, देखो चल रहा है। यस सर। हाँ देखो देखो देखो। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्या समझ आया, कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो बोलो, एक बंदा बोल सकता है कोई भी। हाँ बोलो। बहाना बनाकर और लोग सब कोई मोबाइल चला रहा है। हाँ यानी कि अगर जानवरों की बात करें तो उनका तो एक ही सेंस अनकंट्रोल्ड है। फिश के केस में क्या अनकंट्रोल्ड है? टेस्ट। एलिफेंट के केस में टच नहीं कर सकता वो। नहीं, वो क्या, वो ऑर्गन क्या है जो अनकंट्रोल्ड है? उनका सेंस ऑर्गन क्या है? टच। स्किन। फिश के केस में क्या है? स्किन। एलिफेंट के केस में इट इज स्किन। देन बटरफ्लाई के केस में उनका आई। और हमारे कहना ही क्या है, हमारे सारे सेंसेस को एक मोबाइल खींच के चली जाती है, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो जस्ट इमेजिन हाउ मच वल्नरेबल वी आर। हम कितने, वो क्या होता है, नाजुक कली है कि कोई भी आके हमको रौंद के चला जाता है। The mobile is able to snatch our senses totally 100% without any failure. Our senses are so much weak. ये सैटेलाइट का एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिया ये समझाने के लिए कि हमारा कैपेसिटी कितना है और हम यूज कितना करते हैं। आज के डेट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग है ना, इसरो ने किया। इसरो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। यस सर। सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट ना स्पेसएक्स ने किया है, ना नासा ने भी नहीं किया है, ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं किया है, ना रशियन स्पेस एजेंसी ने किया, किसी ने भी नहीं किया जितना हम लोगों ने किया है। लेकिन एक रिमोट कंट्रोल सैटेलाइट को कंट्रोल में रखने के लिए आपको पता कितने सारे चीजें की जरूरत होती है। दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रेन्स जो होते हैं वो इसरो के काम करते हैं। एंड दे हैव अ 24/7/365 ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्मॉल सैटेलाइट। उसका क्रिटिकल स्पीड, उसका वेलोसिटी, उसका अर्थ टू द सन डिस्टेंस जो होता है वो, देन अर्थ और सन के बीच में एक क्रिटिकल डिस्टेंस होता है जिसके आगे वो निकल जाएगा, आइदर तो वो जल जाएगा, अंदर आ गया तो अर्थ पे वापस गिर जाएगा। स्पिन डीके, ऑर्बिट रेडिएशन, देयर आर सो मेनी टेक्निकल टर्म्स व्हिच अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द कंट्रोल रूम हु इज ऑब्जर्विंग द सैटेलाइट 24 घंटे दिन रात एक करके वो सैटेलाइट को ऑब्जर्व करता है जस्ट टू एंश्योर दैट द सैटेलाइट स्टेज इन ऑर्बिट। और मजे की बात यह है कि एक सैटेलाइट मुश्किल से आपका 12 से 18 साल रहता है, उसके बाद वो स्पेस डेब्री बन जाता है, यानी कि वो कचरा बन जाता है। जैसा कोई घर का कचरा हर दिन साफ करता है, स्पेस में से बहुत सारे कचरे हैं, समझ रहे? तो कहने की बात यह है कि हम इतने आधुनिक बन चुके हैं कि हम बड़े बड़े सैटेलाइट तक कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी 18-20 साल तक कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट फ्लॉ। काश अपने मन को भी थोड़ा काबू रख लिया होता, है ना? यस सर। एक नोटिफिकेशन उतना काफी है, एक उतना ही काफी है ना, हमारा माइंड को अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए। लक्ष्य मतलब कुछ भी हो, चाहे आपका असाइनमेंट लिखना हो क्यों ना, चाहे आपका एग्जाम लिखना हो क्यों, चाहे आपको अभी सेमिनार चल रहा है बढ़िया सा, आप लग रहा है कि चलो ये भी सुनेंगे, साथ में PUBG भी खेलेंगे, साथ में फेसबुक भी चलाएंगे, साथ में इंस्टाग्राम चलाएंगे। सी हाउ योर माइंड इज रूइनिंग यू और हाउ योर माइंड इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ यू सर। दिस थिंग्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। इसीलिए मैंने बताया था दैट इज द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। माइंड हम कंट्रोल नहीं कर रहे माइंड को सर, माइंड हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहले ये जाना जरूरी है। आप अगर इतना जान गए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना जान गए ना कि माइंड हमें कैसा कंट्रोल कर रहा है। यस सर। यस सर। बस एक बंदे ने हाँ बोला, 2 बंदे ने हाँ बोला, 3 बंदे ने हाँ बोला। बस भाई 40 लोगों की क्लास है, बस 2-3 लोगों ने हाँ, 4 लोगों ने हाँ बोला। चलो रेशियो देखो। ओके चलो, मेरे कहने पे 4-5 लोगों ने हाँ बोला है। ओके फाइन, आप लोगों को डांट नहीं रहा, जो बता रहा हूँ। सी ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है।
शार्पेंड नाइफ, एक तेज धार वाले चाकू एक वरदान भी हो सकता है और एक श्राप भी हो सकता है। कैसे कैसे बताओ बताओ। सर अगर हल जैसे कटने के लिए और एक मर्डर करने जैसे के सर लिए। कुछ इंसिडेंट हुआ तो अगर कोई हमारे घर में घुस गया तो उस समय चाकू हमारे लिए अगर वरदान भी हो सकता है और जान बचाने के लिए, और उसके पास अगर रह गया तो वो हमारे लिए एक तरह से मौत का कारण भी है। एग्जैक्टली परफेक्ट। अगर एक डॉक्टर के हाथ में हुआ जान बख्श, और अगर एक मर्डर के हाथ में हुआ अपना खुद का तो जान लेगा, पता नहीं साथ में कितने सारे लोगों का जान लेगा साथ, है ना। तो इसी चीज को भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, बंधुर आत्मा। ओके ठीक है, संस्कृत वाला मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश वाला पढ़ूंगा। फॉर हिम हु हैज कंकर्ड द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड। बट जिसने अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं ला पाया या फिर अपने माइंड पे काबू नहीं रख पाया, सबसे बड़ा शत्रु है वो। कौन? माइंड की बात हो रही है। माइंड को अगर कंट्रोल कर लिए बेस्ट फ्रेंड है, माइंड को अगर कंट्रोल नहीं किए सबसे बड़ा आपका शत्रु बनेगा। अब अर्जुन तुरंत बोलते हैं, अच्छा ये कहाँ है, ओके फाइन, इसका एग्जाम बाद में बताऊंगा। अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में कृष्णा के जो ये स्टेटमेंट था कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं करोगे तो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाएगा वो आपका। तो अर्जुन बोलता है कि सर मेरा माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि माइंड के 4 पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है वो? पहला रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी कि को हिंदी में बताया, इसका रेस्टलेस का अर्थ क्या होता है? सर स्थिर नहीं है। हाँ, स्थिर नहीं है, हमेशा हैरान रहता है, अरे भाई कभी ये कभी वो, कभी नींद नहीं आना, कभी ज्यादा सो जाना, ऑलवेज रेस्टलेस। वो 60,000 थॉट्स आते हैं ना आपके दिमाग में, वो रेस्टलेसनेस का ही नतीजा है। सेकंड, टर्बुलेंट, ओए 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 ओए, अफरा तफरी मची रहती है। आप लोग गए होंगे कभी ऐसा देखने के लिए, ये सब जैसा होता है ना समुद्र के बाजू में जब लहरें आते हैं तो कितना तेज बहाव के साथ लहरें आते हैं, है ना। मतलब आप इस लहरों के आगे अगर आ गए तो आपको तो आइदर पूरा शोर तक लेके जाएगा, और शोर में अगर आप है तो आपको शोर में से मतलब सी बीच में से पानी में लेके जाएगा। किसने कभी एक्सपीरियंस किया है? हम जब पानी में होते हैं तो ये सारे वेव्स हमको शोर तक धक्का दे देती है, और अगर हम शोर में होते हैं यानी सी बीच में होते हैं तो अगर हम ऐसे पानी का सामना करते हैं तो पानी हमें अपनी ओर खींच लेती है। तो दिस इज द नेचर ऑफ टर्बुलेंस। खलबली बची रहती है हमेशा। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, एक बार ठान लिया नहीं करना मतलब नहीं करना, ऐसा होता है। देन स्ट्रॉन्ग, बहुत बलवान है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सर मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अब आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत अच्छा राजा था, और उस अच्छे राजा के राज्य में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रजा भी था। वो प्रजा क्या करता था, हर दिन राजा को, हर दिन नहीं हर साल राजा को भेंट के रूप में अपना जितना भी आमदनी हुआ वो जाके राजा को दे दिया करता था। उसका जितना भी सामर्थ्य था उसके हिसाब से, बेस्ड अपॉन हिज कैपेसिटी, बेस्ड अपॉन हिज पोटेंशियल, ही यूज्ड टू गिफ्ट द राजा, द किंग, सम अमाउंट व्हिच ही गॉट प्रॉफिट, है ना। तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा। द राजा यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस। देन वन फाइन ईयर द किंग डिसाइडेड कि चलो ठीक है, ये बंदा हर दिन मुझे, हर साल मुझे आके इतना अच्छा अच्छा भेंट ऑफर करता है, जबकि इतना क्षमता नहीं रखता वो इतना प्रॉफिट कमाने का। स्टिल whatever profit is earning, whatever small profit is earning, जैसे मान लो 10 रुपए कमाता है, 10 रुपए में से वो 5 रुपए आके मुझे देके जाता है ना। Now the राजा thought let me help him out। तो राजा ने क्या किया, राजा ने इसको पूरा का पूरा, एक बड़ा सा जंगल था उस राजा के पास, वो गिफ्ट कर दिया। ये पीस ऑफ लैंड तुम्हारा है, आप इस लैंड का जो इस्तेमाल करना है आप कीजिए। इसमें बहुत सारे वनस्पतियां हैं, बहुत सारे वेजिटेशन है, बहुत सारे पेड़ हैं, बढ़िया बढ़िया पौधे हैं, अब तो जैसा यूज करना यूज कीजिए। तो बंदा बहुत खुश हो गया, प्रजा बहुत खुश हो गया, राजा का बहुत धन्यवाद जताने लगा। धन्यवाद जताने के बाद जब टाइम बीत गया, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7, 8, 1 साल बीत गया, तो राजा को अचानक से याद आया, अरे भाई मैंने उसको 1 साल पहले दिया था ये पीस ऑफ लैंड, चलो जरा देख के पूछताछ कर लेता हूँ कि क्या किया उसने उसके साथ। तो जाके पूछा उसको, और क्या हाल है। तो उसने, राजा ने रिप्लाई दिया, हम तो वैसे ही जैसे पहले थे,
तो राजा को थोड़ा संदेह हुआ, ऐसा वैसे ही थे जैसे पहले थे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको तोहफे में गिफ्ट के रूप में इतना बड़ा एक जमीन दिया था, उसमें इतना सारा वनस्पतियां थी, क्या किया आपने उनका? तो वो हंस हंस के बोलने लगा, नहीं नहीं सर राजा जी, मैंने क्या किया, वो तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे तो ज्यादा ही हो रहा था, तो इतना पेड़ पौधे इतना जंगल में हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, पेड़ की जितनी भी टहनियां थी एक एक करके काट काट के हम जाके उसको बेच के आए। बेच के आए? अच्छा कितने में बेचा? ऐसे ही जैसे हम सस्ते लकड़ियां बेचते हैं वैसे 10-15 रुपए 20 रुपए में एक एक बंडल। 10-15 रुपए 20 रुपए एक बंडल का, और बाकी टहनियों का? दरअसल राजा जी क्या हुआ, बहुत ज्यादा टहनियां हो गई थी और लोग उसको खरीद भी नहीं रहे थे, तो क्योंकि नहीं खरीद रहे तो हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे से बचे हुए थे, तो मैंने क्या किया, बाकी को जला दिया। तो राजा अपने सर पे हाथ पकड़ के बैठ गया, सत्यानाश हो तुम्हारा, सत्यानाश हो। तो प्रजा कंफ्यूजन में आ गया, भाई क्या हो गया? तो राजा ने बोला, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें वो जो खेती करने के लिए जो पीस ऑफ लैंड दिया था, उसमें जितनी वनस्पतियां थी वो कोई ऑर्डिनरी वनस्पति नहीं था, दैट वाज सैंडलवुड ट्री। ये देखो दिख रहा है, सैंडलवुड ट्री। सैंडलवुड का एक एक छोटा सा लकड़ी भी होता है ना, उसको अगर आप कट करेंगे, रब करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसका तेल बना सकते हैं। इट इज सो मच वैल्यूएबल, और आपने इसको ऑर्डिनरी लकड़ी समझ के क्या किया, भेज दिया, या फिर उसको बर्न कर दिया आपने। सच ए फूलिश पर्सन यू आर, है कि नहीं? सैंडलवुड का छोटा सा लकड़ी आता है पेन के समान, जैसे आपका पेन का जितना लेंथ होता है उतना, इतना हजारों में बिकता है भाई, पता ना आप लोगों को, चंदन की लकड़ियां। Yes, sir. So much valuable, and having this valuable tree in plenty in your garden or in your forest area, इतने सारे आपके सैंडलवुड के ट्रीज थे जो राजा ने आपको भेंट किया। पता नहीं अरबपति राजा से भी अभी बन जाते आप तो, अगर प्रॉपर्ली यूज किया होता तो आपने क्या क्या जला दिया उसको लकड़ी के चूल्हे के हिसाब से है ना? तो यही जो है मैं समझाना चाह रहा था आपको, हमारे पास वो माइंड है जिसको हम कंट्रोल करके अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, वही माइंड को यूज करके अपना सबसे बड़ा शत्रु बना सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सोल्यूशन क्या है सर? फिलोसॉफी तो बहुत बोल दिया, लेक्चर भी बहुत दे दिया, अब चलो सोल्यूशन पे आते हैं। कोई आइडिया किसी को क्या सोल्यूशन होगा इसका? सर जो भागवत गीता पढ़ा होगा उसके पास होगा। ठीक है, चलो मैंने तो पढ़ा, मेरे पास है ओके वेरी गुड। ये क्या है? अच्छा कितने लोग खाना चाहेंगे इसको? देखते मुंह में पानी आ गया खाने की तो बात कर रहे हो है ना? अच्छा ठीक है, कितने लोग इसको खाना चाहेंगे? पता लग रहा है क्या है ये? काउ डंग। काउ डंग? अरे डंग केक, डंग केक, काउ डंग केक, गोईठा है सर, गोईठा। हाँ हाँ ये काउडंग केक, ये भी तो केक की प्रॉब्लम क्या है, इधर चेरी लगा बढ़िया से एकदम व्हाइट कलर का, वैनिला क्रीम लगा इसके ऊपर, तो इसी काउडंग केक को यदि मैं वैनिला लगा के बढ़िया से एकदम वो करके स्पंज लगा के अंदर फिर बढ़िया सा फ्लेवर डाल के ऊपर से चेरी भी डाल दूंगा और साथ में एक प्लेट दे दूंगा और एक चाकू दे दूंगा आपके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे करके काटने के लिए, आप काटेंगे उसको, खाएंगे? खाएंगे सर, मतलब अब वो चीज अगर जिसे पता नहीं हो वो तो करेगा ही, पर जिसे पता हो वो नहीं करेगा। अब तो आपको पता है, आप खाएंगे क्या? नहीं अब नहीं। क्यों क्यों क्यों? केक ही है ना, क्यों क्यों भाई, केक ही दिख रहा, देखो चेरी भी है ऊपर से बढ़िया सा, वैनिला क्रीम भी है, चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कर देंगे आपका फेवरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओगे? नहीं सर। अरे क्यों नहीं खाओगे, प्रॉब्लम क्या, केक ही तो है। क्योंकि हमें उसके अंदर के वो चीज पता है। मैं वही कहना चाह रहा था, कहने का मतलब ये है, बचपन में देखा हाथी को ना एक छोटे से जंजीर के साथ बांध कर रखते हैं, हाथी उतना मजबूत या फिर शक्तिशाली नहीं होता, जंजीर को छोड़ के अपने आप को छुड़ा ले, छोटा होता है ना, वो बड़ा होने के बाद भी उसको ये लगता है कि मेरे को जंजीर से बांध दिया, मैं नहीं निकल सकता, जबकि इतना बड़ा होने के बाद एक पैर मारेगा पूरा का पूरा खूंटा उखड़ के बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसको दिमाग में बैठ गया क्या, वो कचरा, कि मैं नहीं कर सकता। समझ रहे? तो माइंड को ट्रेन करना इतना एसेंशियल है, और माइंड को ट्रेन करने का जो सबसे मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है मंत्रा। अब मंत्रा क्या होता है? मंत्रा होता है दो शब्दों से बना हुआ, मन और त्रा। मन यानी कि माइंड और त्रा यानी कि डिलीवर। त्रा एक संस्कृत वर्ड है, त्रा का मतलब डिलीवर, डिलीवर यानी कि उसको रिहा कर देना, छोड़ देना, उसको मुक्त कर देना अपने अननेसेसरी थॉट प्रोसेसेस से।
तो ये जो मंत्र है, ये एक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, आपने शायद सुना होगा आप लोगों ने। इसके बारे में रिसर्च हुआ था फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में। वीडियो है, मैं नहीं दिखाऊंगा, लंबा समय जा रहा है। तो इफेक्ट्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ऑन स्ट्रेस डिप्रेशन, यानी कि मैं आपको शॉर्ट में बताया था वीडियो में क्या हो रहा था। वीडियो में यह हो रहा है कि एक क्लिनिकल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था। 31 मेल्स थे, 31 फीमेल्स थे, ठीक है नंबर। तो उतने लोगों को बुलाया जाता था हर दिन सुबह सुबह लेबोरेटरी में, और स्ट्रिक्टली उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का क्या बोलते उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से। तो the results have been very much tremendous. What is the tremendous result? They have found that the amount of stress, the amount of depression, the amount of bad habits they had before the experiment was significantly reduced after the experiment. And this experiment was conducted over a period of 1 month. 1 महीने का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये पीएचडी थीसिस बना था एक व्यक्ति का जिसका नाम है डेविड ब्रायन बुल्स। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। एंड पीएचडी थीसिस करने में भाई 5 साल लग जाते कम से कम, है ना। मतलब 5 साल तक उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके इसका थीसिस बना है। And he has submitted to Florida State University and it has been accepted. So this is a very effective way of controlling the mind by chanting mantras. सांप होता है ना, सांप को भी मंत्र से कंट्रोल कर सकता है। तो जब सांप मंत्र से कंट्रोल हो सकता है तो हम क्यों नहीं यार। And this mantra is not an ordinary mantra. This is called as a Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. It is a very bona fide and it's a very authentic mantra. Of course, अभी टाइम के पाबंदी के कारण हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। Otherwise, if you would have been on a seminar live, जैसा आप मुझे देख पाते, मैं आपको देख पाता, we would have done it for a trial. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग प्लीज इस मंत्र को चैंट कीजिए। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको मेरी आवाज आ रही है कानों तक, है ना। तो आपका मंत्र जब आप बोलेंगे आपके कानों तक आना चाहिए। इट शुड बी ऑडिबल एनफ। चिल्लाना नहीं है ताकि दूसरे वाले परेशान हो जाए, पड़ोसी वाले। एटलीस्ट इतना ऑडिबली चैंट कीजिए कि आपको सुनाई दे। 10 मिनट तक करेंगे सफिशिएंट। यू विल सी विजिबल चेंजेस इन योरसेल्फ एंड द प्रूफ इज दिस। ये है प्रूफ। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पे और ये रिजल्ट है। और इसी रिजल्ट पे उन्होंने पीएचडी किया है। भाई मजाक थोड़ी है। पीएचडी एरेगुलर टॉपिक्स पे नहीं मिलता। पीएचडी पे रिसर्च करना पड़ता है, आपको जी जान लगानी पड़ती है। 5 साल आप बिताते हैं। डिग्री तो बहुत छोटा है, डिग्री में तो हंसी मजाक में निकल जाता है डिग्री, और ऊपर सब तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, 2 साल कैसा निकल गया पता नहीं चला, है ना। बट पीएचडी इज अ वेरी सीरियस थिंग। दे डोंट गिव यू अ पीएचडी डिग्री अंटिल अनलेस यू डू सम सॉलिड रिसर्च वर्क। इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए। और एक और चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, इसको छोड़ दो, जरूरी नहीं है। ये एक फ्री भगवत गीता कोर्स है आप लोगों के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जो लोग नहीं है कोई बात नहीं, दे कैन मूव अहेड। इट्स अ फ्री कोर्स 24/7। सो लर्निंग द, अब तक हमने जितना, अभी तक आधा घंटा टॉक हो गया है। 40 में चालू किया था हमने, 15 हो गया, ठीक है, मोर देन आधा घंटा हो गया। एंड whatever discussion we have done is purely from Bhagavad Gita, right? We have discussed 6th chapter from Bhagavad Gita, we have discussed 2nd chapter from Bhagavad Gita, we have discussed 4th chapter. कुछ जगह पर chapter mention नहीं किया, but I have given reference from them. Now this is a Bhagavad Gita for youth course. There is no deadline. It's a free, and the program is to make everyone happy. If you want to learn, you can register yourself, है ना। छोटे-छोटे वीडियोस मिलेंगे आपको, not more than 25 minutes of length. It's a certified course, by the way. Certified course यानी कि ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड दिस यू कैन ऐड इन योर करिकुलम वाइटी और प्रोफाइल में लगा सकते हो आपने। इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स और बहुत लोगों ने अब तक कंप्लीट भी कर लिया इस चीज को। अगर आप स्कैन करना चाहते हैं इसको, आप स्कैन कर सकते हैं। टाइम इज स्टिल देयर। एंड इफ एनीबॉडी हैज सम क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैन आस्क मी। आई कैन टेक सम फ्यू मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Otherwise, if anybody has no question, then we can pass it over to the moderator. All right, since nobody has some questions, तो मतलब दो मतलब इसका, इधर तो एकदम सब कुछ झकास क्लियर हो गया एकदम, जैसे होता है ना दिवाली के टाइम घर को साफ करते हैं, वैसा आपको दिमाग पूरा साफ हो गया। दूसरा सब बाउंसर क्या, कुछ समझ में नहीं आया। नो प्रॉब्लम।
आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम द सेशन. जितना आपको समझ में आया उतना प्रैक्टिस कीजिए. ओके या फिर आप किस कोर्स में रजिस्टर करना चाहेंगे तो रजिस्टर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, so we shall end here. Thank you so much for bearing with me. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. That was such a lovely session, exchange of knowledge, and I hope all of us have been able to take something from this session. So thank you, everyone. Now I'm finishing this program. We'll you turn on your camera. We'll take end this session. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. यहाँ आ जाना सीधा मासी पे यहाँ फोटो